بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، اس وقت میں وطن عزیز کے نابغہ روزگار شاعر اور دانشور اپنے استاد محترم اور تایا جان حضرت نور محمد نور کپورتھلوی کے مزار عالیہ پر کھڑا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ یہی وہ عظیم المرتبت شخصیات ہیں، یہی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کی وجہ سے الفاظ کا تانا بانا اور الفاظ کی ادائیگی تحریر و تقریر کی طرف میں گامزن ہوں۔ علم و ادب کا شوق جو ہے انہی ہستیوں کے تصدق سے ملا ہے۔ سامعین، پاکستان کے ممتاز شاعر، ادیب، ماہر لسانیات، مورخ، ماہر علم بشریات اور فنون لطیفہ جناب نور محمد نور کپورتھلوی نے 19 ستمبر 1997 جمعہ المبارک کے روز دوپہر 1:30 بجے فیصل آباد لائل پور پاکستان میں اس دھوپ بھری دنیا کو چھوڑ کر عدم کی بے پناہ وادیوں کی جانب رخت سفر باندھ لیا۔ علم و ادب کا خورشید جہاں تاب جو 5 اگست 1917 کو ہندوستان کے ضلع جلندھر کی ایک ریاست کپورتھلا کے ایک گاؤں نورپور راجپوتہ میں طلوع ہوا اور 19 ستمبر 1997 کو فیصل آباد پاکستان میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ فیصل آباد کے نواح میں یہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، واقع یہ گاؤں چک نمبر 87 گافبے المعروف بابے دی بیر براہ ڈچکوٹ کی بے آباد زمین نے عالمی ادبیات کے اس آسمان کو ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ سامعین، 7 اشروں سے تخلیق کے ادب میں ہمہ وقت مصروف یہ شخصیت جس نے ہمیشہ علم و ادب کی آبیاری کی، فرشتہ اجل فتین، فعال اور مستعد تخلیق کار سے قلم چھین لیا۔ ہماری محفل کے وہ آفتاب و ماہتاب جن کے دم سے ہمارے دل کی انجمن میں اجالا ہے، جب زینہ ہستی سے اتر کر عدم کی بے پناہ وادیوں میں غروب ہو جاتے ہیں تو صفاق ظلمتیں اور جان لیوا سناٹے ہمارا مقدر بن جاتے ہیں۔ نور محمد نور کپورتھلوی کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ جس پر شہر کا شہر سوگوار ہوا اور ہر آنکھ اشکبار ہوئی۔ ان کی یاد میں بزم ادب ایک عرصہ تک سوگوار رہے گی۔ انسانی ہمدردی، پیار، ایثار، رواداری، بے لوث محبت، بے باک صداقت کو تمام عمر ہردے جاں بنانے والے جری تخلیق کار نور محمد نور کپورتھلوی کے دامن میں ہمیشہ محبت کے لازوال پھول ہوتے۔ ان کا ظاہر اور باطن شفاف آئینے کی مانند ہوتا تھا۔ جناب نور محمد نور کپورتھلوی راجپوت قبیلے میں چودھری محمد بخش کے گھر ریاست کپورتھلا مشرقی پنجاب ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کپورتھلا کی منڈی میں آڑت کا وسیع کاروبار کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم ریاست کپورتھلا سے حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد اپنی خداداد صلاحیتوں اور کچھ حاصل کرنے کے جذبے سے گریجویشن تک علمی مدارج طے کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے فارسی، عربی، اردو، فاضل جیسے علمی
कोर्सेज भी कर रखे थे। आप एक सेल्फ मेड इंसान थे। आप 1939 में दूसरी जंग अजीम के वक्त फौज में ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करते रहे। आप अपने चाचा चौधरी नबी बख्श के पास ईरान की आयल कंपनी में फील्ड इंचार्ज के तौर पर काम करते थे। बरे सगीर की तकसीम के अवाइल में आप कुछ अरसा लायलपुर काटर मिल्स में कलर के तौर पर भी काम करते रहे। बाद अज़ां इस मुलाजमत को खैर बात कहकर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस GTS में मोटर मैकेनिक भर्ती हो गए। मोटर मैकेनिक के ओहदा से तरक्की करते हुए अपनी सलाहियतों के जरिए बतदरीज वर्क्स मैनेजर और अज़ाबाद पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रांसपोर्ट विंग में मोटर व्हीकल एग्जामिनर के ओहदे पर तरक्की कर गए। जनाब नूर मोहम्मद नूर कपूर थलवी ने हमेशा दयानतदारी से अपने फराइज अंजाम दिए। वो अपने अफसरान बाला के नजायज मुतालबात, दबाव और सिफारिश को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वक्त के हुक्मरान के इशारे पर गलत काम ना करने पर उनका तबादला उनको तंग करने के लिए दूसरे सूबे के शहर पेशावर कर दिया गया। वहां अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है। सिफारिश, अकरबा परवरी और रिश्वत जोरों पर थी जो उनके असूलों के खिलाफ थी। तो उन्होंने हमेशा म्यार और सच्चाई को मलहूज़े खातर रखा और अपने फराइज की अदायगी में रोशन मसालें कायम की। कभी असूलों पर सौदेबाजी ना की। सुबह सरहद खैबर पख्तूनख्वा में तमाम काम वहां के जरगों की मर्जी से होते थे। ऐसे काम और फैसले देखकर आप ज्यादा अरसा वहां अपनी खिदमत सर अंजाम ना दे सके और अपना इस्तीफा अपने से बड़े अफसर के मेज पर रखकर सीधे अपने घर लायलपुर आ गए। फिर लायलपुर का अपने काम के साथ साथ अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में सरगर्म अमल हो गए। 1966 में आपने कुछ अरसा पाकिस्तान बर्मा शहर में बतौर मैनेजर खिदमत सर अंजाम दी और इस मुलाजमत को खैर बात करके घर गृहस्थी के मसाइल में मसरूफ हो गए। जनाब नूर मोहम्मद नूर कपूर थलवी की मुतअद्दिद कुतुब जो है वो शाया हो चुकी हैं। उनकी शख्सियत और फिक्र फन पर भी मकाला लिखने का एजाज मुझ बंदा नचीज इजहार अहमद गुलजार को हासिल हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी यगाना रोजगार फाजल हस्तियां रोज रोज पैदा नहीं होती। ये इस धरती का, इस गांव का फख्र थे। यहां इस वक्त मैं खड़ा हूं तो जनाबे नूर मोहम्मद नूर कपूर थलवी अलैह रहमा ने हमेशा मोहब्बतें बांटी और मोहब्बतें तकसीम की। उनकी एक मशहूर पंजाबी नज़म दो नूर जहाना मलका हिंद और मलका तरन्नम का बड़ा चर्चा रहा। शेरी नशिस्त होती या कोई और महफल, ये नज़म उनसे फरमाइश करके बार बार सुनी जाती। ऊपर से उनके पढ़ने का अंदाज और भी मज़ा दुबाला कर देता था। तो इस तरह उनकी नातें जो हैं वो भी कल्ब और रूह की तमानियत का बायस बनती हैं। उनकी एक नात जो है, पंजाबी की नात जो है, वो बड़ी ज़ुबान ज़द आम है और बड़ी शौक से महफिल में सुनी जाती है कि सोहणियां सोहणियां मिठियां मिठियां भागां भरियां प्यार दियां, आओ रल के गल्लां करिए अज मदनी सरकार दियां। जिथे जिक्रे मुहम्मदी होवे ओ तशरीफ लियाउंदे ने, हस्तियां ओ तशरीफ लियावन जो तालब दीदार दियां। माई हलीमा दा कर भरिया सरवर पाक दे आमन ते, केड़ियां केड़ियां सिफतां दस्सां मैं अहमद मुख्तार दियां। अरश ते जामन वाला जाने या जाने जिन सदिया सी, रब नाल की गल्लां होइयां मौला दे दिलदार दियां। ते आतश कदा ईरान दा बुझिया, किंगरे डिग पै कैसर दे, खास निशानियां जाहिर होइयां आका दे इजहार दियां। मजलस विच असहाब जो हाजर जिक्र नबी दा सुनदे ने, दियो बशारत सारियां ताईं जन्नत दी गुलजार दियां। नूर मोहम्मदा
ਤੂੰ ਵੀ ਭਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ, ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੱਜ सरकार दियां। सामईन, गोयटे ने किसी शायर के मानने पर यह कहा था कि शायर का मरना आसमान पर जगमगाते हुए सितारे का मरना है, जिससे लोग समत नमाई और रोशनी हासिल करते हैं। जनाब नूर मोहम्मद नूर कपूरथलवी चुपके से ये जहान छोड़ गए। हमारे अहद में दरख्शंदा सितारा टूट गिरा और एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। उर्दू और पंजाबी जुबान और अदब के हमाला की सर बेफलक चोटी अजल के हाथों जमीन बोस हो गई। जनाबे नूर मोहम्मद नूर कपूरथलवी की मौत एक फर्द की मौत नहीं थी, बल्कि हमारे निसफ सदी की तहजीब की मौत है। उनका जामे कमालात वजूद इस वीराने में एक ऐसा बुलंद मीनारा तबिंदा था जो बहुत दूर से दमकता नजर आता था। उनकी मौत से महफिल सकाफत दरहम बरहम होकर रह गई। एक के बाद दूसरा मुसाफिर उस जगह आ जाता है, लेकिन जनाबे नूर मोहम्मद नूर कपूरथलवी की शख्सियत इस कदर गैर मामूली थी कि उनकी मसनद खाली रहेगी और सीना इल्म हुनर से हशर तक के दिन तक धुआं उठता रहेगा। मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक तीनत रा।